Hello, my dear students. I welcome you all to our channel that is Let's Crack 9th and 10th. जैसे कि आपको पता है कि मैं हूं दिव्या कश्यप and as far as my qualification is concerned, I am MSc Chemistry as well as Microbiology with 18 years of teaching experience. I'm ex-faculty of Success Series, iWiz Education, and ex-content creator of Exam Fear. And now I'm on Unacademy to resolve all your doubts related to chemistry and make you perfect in science. So let's start the session. So in today's session, we are going to discuss about the complete chemistry and we are going to discuss the 2014 and 2015 paper. तो इस पेपर में हम कंप्लीट केमिस्ट्री का सिलेबस तो कंप्लीट करेंगे एंड अलोंग विद दैट विल कवर द फिजिक्स एंड द बायो आल्सो. अब जैसे कि आपको पता है आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए हो विच इज एट राइट प्लेस बिकॉज एट दिस प्लेस यू गेट लॉट ऑफ इंटरेक्टिव सेशंस विच प्रूव वेरी फ्रूटफुल फॉर यू. तो आप हमारे साथ टेलीग्राम ऐप के थ्रू भी जुड़ सकते हो. आपको करना क्या है, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है, राइट उसमें ये जो चैनल का लिंक दिया हुआ है इसको फिल करना है एंड यू विल गेट कनेक्टेड टू अस. और उस ग्रुप में आप हम नोटिफिकेशंस, पीडीएफ, व्हाटएवर यू वांट लाइक द इंफॉर्मेशन you can take from your favorite teachers. तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे इंटरेक्टिव सेशंस लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को सर्च करना है, उसको इंस्टॉल करना है. देन यू हैव टू मैनेज गोल्स, आपको अपनी क्लासेस सिलेक्ट करनी है एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट द कोर्स विच यू वुड लाइक टू टेक प्लस फ्री कोर्स और स्पेशल क्लासेस. Even you can unlock the free content using my code which is Divya01. But you have to follow few simple steps in order to unlock the free content. Step 1. Search the Unacademy Learning app in the Google Play Store and then download it. Second, log in the app and then select goal. Step 3. Select the menu button which is on the top left corner and select special and then enter the invite code to unlock your free plan. So how simple is that? So you can follow these 4 steps and unlock the free content whenever you want. Even you can join the Unacademy quiz and again you have to follow steps, but this time you have to follow 6 steps. So step number 1, it is same like when you used to unlock the free content. आपको Unacademy Learning app को Google Play Store में search करना है, उसको download करना है. Step number 2, log in the app and select goal. Step number 3, select the menu button which is on the top left corner and then select plus. Then select the label test in the tab which is at the bottom of the screen. Then click on the option join quiz and enter the code and just wait for the educator, your mentor, your host to conduct the quiz. अगर आपको लगता है कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाती हूँ, आपको कंसेप्ट क्लियर कर पाती हूँ, आपकी स्टडीज में आपकी हेल्प कर पाती हूँ, सो यू कैन ज्वाइन मी इन द स्पेशल क्लास. माय डेली क्लास टाइमिंग, स्पेशल क्लास टाइमिंग्स आर 3 PM और वीकेंड्स पे मैं ये क्लासेस अपनी 11 AM और 12 PM पे शेड्यूल करती हूँ. So if you want special classes, so you can join there, but you have to follow my profile for the notifications regarding the schedule which I set for my special class. My referral code is Divya01. So if you really need the live session, you are interested in polling, you are really interested in getting your doubts and the concept cleared by me, so you can just join me in the special class at 3 PM. So are you ready to start with the lecture today? तो आज हम जैसे कि मैंने आपको बताया 2014-15 का कंप्लीट पेपर डिस्कशन करने वाले हैं. So the first question is, how many horizontal rows are there in modern periodic table and what are they called? अब देखिए जितने भी इसमें क्वेश्चंस होंगे मैं उसका आपको आंसर भी दूंगी डायरेक्ट और उसका एक्सप्लेनेशन भी करूंगी मैं आपको, ताकि आपको याद आ जाए कि कहाँ से रिलेटेड है ये, राइट. तो अभी आपको पूछा है कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है, जो कि आपको पता है बोर ने दिया है, उसमें कितनी हॉरिजॉन्टल रोज है. अब आपको पता है, सबसे पहली बात तो आपको ये चीज अच्छे से पता है कि पीरियोडिक टेबल किस लिए दिया गया था, क्योंकि मेरा मतलब सिर्फ आपको आंसर देना नहीं है, मैं आपको वो कॉन्सेप्ट रिवाइज भी कराना चाहती हूँ. तो आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल बहुत से हुए थे, जैसे डॉबर ने दिया अपना क्लासिफिकेशन, फिर न्यूलैंड ने अपना क्लासिफिकेशन दिया, पीरियोडिक टेबल फिर मेंडलीव ने दिया और फिर हमारे पास आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक
table. Modern periodic table was given by Neil Bohr and it was based on the modern periodic law. जो क्या था? Properties of the elements are periodic function of their atomic numbers. Properties of the elements are periodic function of their atomic numbers. मतलब अगर हम elements को arrange करेंगे atomic numbers के according तो हमें properties में उनकी periodicity दिखेगी. तो इस पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की तरह से ग्रुप्स भी थे और पीरियड्स भी थे. ग्रुप्स भी थे और पीरियड्स भी थे. तो कितने ग्रुप्स थे? इट हैड 18 ग्रुप्स. इसके अंदर कितने ग्रुप्स थे? 18. और इसके अंदर पीरियड्स कितने थे? इसके अंदर पीरियड्स थे 7. और आपको पता है ग्रुप्स को आप क्या कहते हो? दे आर वर्टिकल कॉलम्स. ग्रुप्स क्या होते हैं? बेसिकली दे आर वर्टिकल कॉलम्स. और पीरियड्स क्या होते हैं? पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टल रोज. पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टल रोज. तो इस क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल रोज के बारे में पूछा गया है तो आई थिंक आंसर क्लियर है कि कितने हॉरिजॉन्टल रोज थे? 7 हॉरिजॉन्टल रोज प्रेजेंट थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट एनी 2 फैक्टर्स दैट कुड लीड टू स्पीशिएशन. आपको 2 फैक्टर्स बताने हैं जो कि स्पीशिएशन कर सकते हैं. तो बेसिकली स्पीशिएशन का मतलब क्या होता है? इट मीन्स द डेवलपमेंट It means the development of new species. It means the development of new species. वो नई species के 2 कारण हो सकते हैं. Variations हो सकते हैं, right? It can arise due to variations or it can arise due to any other factor like the mutations, or it can be a genetic drift. It can be the environmental factors. इट कैन बी एनवायरमेंटल फैक्टर. तो किसी भी तरह से नई स्पीशीज बन सकती है. तो स्पीशिएशन का बेसिकली मतलब है डेवलपमेंट ऑफ द न्यू स्पीशीज ड्यू टू वेरिएशन, ड्यू टू एवोल्यूशन, एंड द फैक्टर्स व्हिच कैन बी रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू फॉर द स्पीशिएशन कैन बी म्यूटेशन, कैन बी जेनेटिक ड्रिफ्ट, कैन बी सम एनवायरमेंटल फैक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेंशन 1 नेगेटिव इफेक्ट ऑफ अ एफ्लुएंट लाइफस्टाइल ऑन द एनवायरमेंट. जो आजकल आपका इतना मॉडर्न एफ्लुएंट लाइफस्टाइल हो गया है उसका एनवायरनमेंट पे एक नेगेटिव इफेक्ट हमें बताना है. हमें पता है कि सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट तो आपको पता है ये है कि बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रीज बन गई हैं, राइट? बहुत ही ज़्यादा व्हीकल्स का यूज़ होने लगा है और इस करके बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन होने लगा है. बहुत ही ज़्यादा क्या होने लगा है? पॉल्यूशन. एंड इवन आपको पता है कि जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनकी स्मोक में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है विच कंबाइंस विद रेन टू फॉर्म एसिड रेन, है ना? एसिड रेन भी इसी कारण बनती है. सिमिलरली और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं. एसिड रेन हो गया, एयर वाटर सॉइल पॉल्यूशन हो गया, है ना? ऐसे ही ग्रीन हाउस गैसेस एनवायरनमेंट में इंक्रीज हो रही है जिनकी वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग, which results in global warming. तो बहुत से फैक्टर्स हैं. एक नेगेटिव इफेक्ट नहीं, मैं अभी आपको 3-4 नेगेटिव इफेक्ट बता चुकी हूँ. तो ये एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं. नेक्स्ट, मेंशन 2 फंक्शंस ऑफ ह्यूमन टेस्टिस. आपको पता है टेस्टिस क्या होती हैं? टेस्टिस इज अ मेल गोनाड, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसी को आप क्या बोलते हो? मेल गोनाड. तो ह्यूमन टेस्टिस के 2 फंक्शंस हमें बताने हैं. सबसे पहला तो स्पर्म फॉर्मेशन. टेस्टिस का काम क्या होता है? स्पर्म बनाना. स्पर्म फॉर्मेशन विच स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. विच स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. और जो बॉयज होते हैं उनमें प्यूबर्टी 13 to 16 ईयर्स ऑफ एज में आती है, राइट? सो स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट एट दैट टाइम. दूसरा चीज, टेस्टिस क्या सिक्रीट करती है? दे सिक्रीट द मेल सेक्स हार्मोन. टेस्टिस क्या सिक्रीट करती है? दे सिक्रीट मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरॉन. दैट इज टेस्टोस्टेरॉन. और ये जो मेल सेक्स हार्मोन है ये क्या करता है? इट ऑब्वियसली स्पर्म फॉर्मेशन में तो हेल्प करता ही है, और क्या काम करता है? इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स जैसे कि मुस्टैशेस, बियर्ड, pubic hairs, whitening of shoulders, है ना? दिस थिंग प्रोट्रूडिंग ऑफ एडम्स एप्पल. तो ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो कि मैस्कुलाइन फीचर्स है वो डेवलप होते हैं ड्यू टू द हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन.
तो दो मेन काम है, एक तो स्पर्म फॉर्मेशन और दूसरा सिक्रीशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन. Next question is, every one of us can do something to reduce our consumption of various natural resources. हम सब मिलके कुछ ऐसा कर सकते हैं ताकि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का जो कंजप्शन है उसको कम करें. तो हमें ऐसी 4 एक्टिविटीज बतानी है बेस्ड ऑन द 3R अप्रोच, राइट. तो बेसिकली आपको पता है 3Rs का मतलब क्या होता है. 3Rs हमें प्रैक्टिस करने चाहिए इन ऑर्डर टू यू कैन से दी सिक्योर दी रिसोर्सेज. तो ये 3Rs क्या होते हैं? ये 3Rs होते हैं रिड्यूस, reuse and recycle. We should practice these 3 activities. Reduce का मतलब है to minimize the use of sources. To minimize the use of sources. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिन का टाइम है, ठीक है, लाइट है, तो आप उस समय घर में ट्यूब लाइट्स बल्ब्स का यूज मत कीजिए, राइट. मैं यहाँ लिख लेती हूँ, डू नॉट यूज lights which includes tube light bulbs in daytime. ठीक है, आप अपनी खिड़कियां दरवाजे खोल के रखिए, नेचुरल सनलाइट को यूज करिए. ऐसे ही आपको पता है कि नॉर्मली हम जब ब्रश करते हैं या नहाते हैं तो हम बहुत पानी वेस्ट करते हैं. तो डू नॉट लेट द टैप ओपन अननेसेसरी. ठीक है, मतलब जितना पानी है मतलब जितना पानी आपके पास है, आपको जितना चाहिए उतना यूज करो, उसको बहने मत दो, राइट. ऐसे ही रीयूज का मतलब क्या है? रीयूज का मतलब है कि हमें चीजों को रीयूज करना चाहिए. मतलब अगर कोई चीज आपकी खराब हो गई है, उसको किसी और तरीके से रीयूज करने की कोशिश करनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके पास न्यूज़पेपर्स होते हैं, ठीक है, ओल्ड न्यूज़पेपर्स जो होते हैं, उनको फेंकने की बजाय आपको पता है कि हम उनको रद्दी में देते हैं और फिर उनसे कॉपीज वगैरह बन सकती है, उनसे कप्स बन सकते हैं, प्लेट्स बन सकते हैं, राइट. सो दिस इज बेसिकली रीयूज, दैट यू आर यूटिलाइजिंग द थिंग्स अगेन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की बॉटल्स होती है, उनको आप नॉब बंद करके उसमें प्लांट्स उगा सकते हो. तो यू कैन मेक यूज ऑफ द बॉटल्स, न्यूज़पेपर्स, इन सब का हम रीयूज कर सकते हैं. रिसाइकिल मतलब चीजों को रिफॉर्म करना और फिर दोबारा यूज में लाना. फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि जैसे अगर आपके पास कोई आयरन आर्टिकल है, ठीक है, आपने उसको यूज कर लिया, तो आप उसको, वो खराब हो गया या कुछ भी, तो आप उसको मेल्ट करके उसको रिफॉर्म करके किसी और फॉर्म में यूज कर सकते हैं, राइट. सो बेसिकली वी कैन रिसाइकिल द थिंग्स. So we can practice this reduce, reuse and recycle, and such activities can actually reduce the consumption of natural resources and can conserve the natural resources. And obviously it will add to the, it will add a good impact on the environment. Next, a ray of light incident on a rectangular glass slab immersed in any medium emerges parallel to itself. Draw a label diagram to justify the statement. अब आपको बोला गया है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है लाइक दिस, एंड इट इज इमर्स्ड इन एनी मीडियम, इमर्जेस पैरेलल. लेट्स से दिस इज, हम इसको कुछ मीडियम ले लेते हैं. लेट्स से दिस इज डेंसर मीडियम एंड दिस इज रेयरर मीडियम. तो अगर आपके पास ये इंसिडेंट रे है, दिस वुड बी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ये आपके पास नॉर्मल रे है. इट विल, रेयरर में क्या होगा, इसका स्पीड बढ़ जाएगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना. तो ये आपके पास है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, ये भी एक आपके पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है. अब ये वापस से अपने डेंसर मीडियम में आएगा, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. ये भी मैंने इस तरीके से फ्री हैंड बनाया, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है अच्छे से, तो इसको आप याद रखिए. जैसे ये आपके पास रे है, ये इस तरीके से बेंड होगी एंड देन दिस विल बी द इमर्जेंट रे, विल बी द इमर्जेंट रे. तो ये हमारे पास है इमर्जेंट रे एंड दिस इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस. तो हमने ये देखा कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो इमर्जेंट रे है, ये ऑलमोस्ट इसके पैरेलल होती है. ये क्या होती है? इसके पैरेलल. सिर्फ फर्क क्या होता है कि ये किसी मीडियम में से पास होकर आई है, इसीलिए इसका पाथ बदल जाता है एंड दिस इज कॉल्ड एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट.
This is called as lateral displacement. That is the perpendicular shift in the path of incident ray when it travels through a certain medium and then returns to its original medium. And also, it shows that the path of light is reversible. The path of light is reversible. जैसे आपने लाइट यहाँ से यहाँ फॉल किया, अगर आप इसको उल्टा भी इंसिडेंट कराते तो it would have followed the same path. Next, we often observe domestic waste decomposing in the bylanes of residential colonies. Suggest ways to make people realize that the improper disposal of waste is harmful to the environment. तो आपको ये बोला गया है कि आपकी जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज होती है वहाँ पे बहुत सा डोमेस्टिक वेस्ट डंप होता है कहीं कहीं पे. तो किस तरीके से हम लोगों को रियलाइज करा सकते हैं कि जो इम्प्रॉपर डिस्पोजल है वेस्ट का वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है. So what we can do is we can make use of posters, right? We can make use of campaigns. हम आप कह सकते हैं कि कुछ सोशल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं जिससे पता लगे कि ऐसी ऐसी गंदगी से क्या क्या बीमारी होती है और कैसे कैसे ये बीमारी फैलती है और कैसे सबको नुकसान पहुंचा सकती है. Similarly, we can initiate a cleanliness drive. हम एक मार्च निकाल सकते हैं which would promote कि हमें जगह को क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि ये तो आपको पता है कि अगर हम जगह को क्लीन नहीं रखेंगे तो वहां पे बहुत ही अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होगा और बहुत सी बीमारियां फैल सकती हैं एंड इवन दोज डिजीज कैन बी फेटल, राइट. तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज गवर्नमेंट अगर करे तो जो लोगों को रियलाइजेशन नहीं है इस चीज की वो रियलाइजेशन हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट used for the conversion of ethanol to ethanoic acid. Distinguish between ethanol and ethanoic acid on the basis of litmus test and reaction with sodium carbonate. तो पहला हमारे पास है कि हमें बताना है कि जब इथेनॉल को हम इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा. तो आप देखिए इथेनॉल मीन्स अल्कोहल की बात हो रही है और इथेनोइक एसिड मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है. ठीक है, तो अल्कोहल को अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड में करते हो तो आपको पता है अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा और इस प्रोसेस को आप कहोगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. और कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होता है. इट अकर्स इन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट in presence of it. So it is alkaline KMnO4 or it can be acidified K2Cr2O7. तो इनमें से हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, राइट. तो अगर हम ऐसा यूज करेंगे तो रिएक्शन बेसिकली क्या रहेगा, इथेनॉल alkaline KMnO4 potassium permanganate, it gets converted to ethanoic acid which is CH3COOH and it is called as complete oxidation. दूसरा आपको इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में डिस्टिंग्विश करना ऑन द बेसिस ऑफ लिटमस टेस्ट एंड सोडियम कार्बोनेट. तो सबसे पहली चीज, अगर हमारे पास इथेनॉल है और हमारे पास इथेनोइक एसिड है, इथेनॉल है और इथेनोइक एसिड है, तो अगर आप इसको इस तरीके से ट्रीट करेंगे, अब आप देखिए अगर आप इसको इथेनॉल या इथेनोइक एसिड को ट्रीट करेंगे तो इथेनोइक एसिड क्या करेगा, it is an acid, it will turn blue litmus red and it will turn red litmus blue. दूसरा हमें सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करना है, तो इथेनोइक एसिड जो कि आपका CH3COH है, अगर आप उसको सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, वी विल गेट CH3COONA, दैट इज सोडियम एसिटेट या आप इसको सोडियम इथेनोएट भी कह सकते हो, और साथ में इसके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी अलॉन्ग विथ वाटर. ठीक है, अब आप अगर इसको इथेनॉल के साथ रिएक्ट करते हो, यहां लिख रही हूं मैं रिएक्शन, तो अगर आपके पास इथेनॉल है C2H5OH और उसको आप Na2CO3 के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो हमारे पास क्या बनेगा, वी विल गेट C2H5ONA. H को रिप्लेस करेगा Na जैसे यहाँ पे किया था, बट यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, इट वुड बी सोडियम इथॉक्साइड. इट वुड बी सोडियम इथॉक्साइड, राइट. तो यहाँ पे बनेगा सोडियम इथेनोएट और यहाँ पे बनेगा सोडियम इथॉक्साइड. गॉट इट. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व नहीं होगी.
So this would be the difference between the two. Next question is, differentiate between alkanes and alkenes. Name and draw the structure of one member of each. Alkanes generally burn with clean flame. Why? तो आपको पता है कि जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं. तो बेसिकली अल्केन्स कौन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, और अल्कीन्स जिसमें एक प्लेस पे मतलब पूरी चेन में एक या एक से ज्यादा हमें डबल बॉन्ड दिख सकते हैं. तो दैट इज अ मेंबर ऑफ अल्कीन. अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज CnH2n+2, और अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n. अल्केन्स के लिए सफिक्स यूज करते हैं एन और अल्कीन के लिए सफिक्स यूज करते हैं ईन. अल्केन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है और अल्कीन्स जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है. मेंबर्स भी बोले गए हैं, तो यहाँ पे हम एक मेंबर ले लेते हैं. फर्स्ट मेंबर इज मिथेन और अल्कीन का फर्स्ट मेंबर है दैट इज इथीन. इसका स्ट्रक्चर देखें तो CH4 का इस तरीके से स्ट्रक्चर है, लाइक दिस. और अगर हम इथीन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इथीन में C2 है, H4 है, ऐसे हम इसको डिवाइड कर लेंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेस. ठीक है, अब हमें बोला है कि जो अल्केन्स है दे जनरली बर्न विद क्लीन फ्लेम. इट्स राइट, दे बर्न विद ब्लू फ्लेम. द रीजन बीइंग, और ये जो फ्लेम होती है ये नॉन सूटी भी होती है. द रीजन बीइंग क्योंकि जो अल्केन्स हैं उनमें कार्बन का परसेंटेज अल्कीन्स और अल्काइंस के कंपैरेटिवली क्या है, लेस है, इसलिए वो कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं. दे गेट कंप्लीटली बर्न एंड प्रोड्यूस ब्लू नॉन सूटी flame. Next question is, given below are some elements of modern periodic table. और इनके एटॉमिक नंबर्स भी दिए हैं. बेरिलियम का 4, दिस इज फ्लोरीन 9, दिस इज सिलिकॉन 14, पोटेशियम 19 एंड कैल्शियम 20. हमें बताना है, select the element that has one electron in outermost shell and write its configuration. Select two elements that belong to same group, give reasons. Select two elements belong to same period and which one of the two has the bigger atomic size. तो ये सब चीजें जो पूछी गई हैं ये हमें कॉन्फ़िगरेशन के बिना नहीं पता लगेंगी. तो पहले हम कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं. ये बेरिलियम की हो गई, फ्लोरीन की आपके पास 27 हो गई, सिलिकॉन की आपके पास 284 हो गई, देन वी हैव पोटेशियम विच इज 2881, और कैल्शियम की आपके पास हो गई 2882. ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन लिखे बिना आप कभी भी ग्रुप पीरियड या ऐसे आंसर्स नहीं दे सकते हो. तो एटॉमिक नंबर और उसके बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना जरूरी है. अब आपको बताना है कि कौन से एलिमेंट है जिसका 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में. तो इनमें से सब में से 1 इलेक्ट्रॉन किसका है, पोटेशियम का. तो 1 इलेक्ट्रॉन किसमें है, पोटेशियम में, और उसका कॉन्फ़िगरेशन वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 2881. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दो एलिमेंट्स जो कि सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं. तो आपको पता है जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है वो सेम ग्रुप से बिलोंग करेंगे. बेरिलियम आप देखिए सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करता है, फ्लोरीन 17 से, सिलिकॉन 14 से, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप से और कैल्शियम सेकेंड ग्रुप से. अब यहाँ पे बेरिलियम और कैल्शियम के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम है, बाकी किसी के सेम नहीं है. तो कौन से दो एलिमेंट्स हैं वो, कैल्शियम और बेरिलियम, because they have same number of valence electron. जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं वो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और जिनके शेल सेम होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स, वो सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सेम पीरियड पे ही है. अब इसमें 2 शेल्स हैं, ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, इसमें भी 2 शेल है, ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, इसमें 3 शेल्स हैं, ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, इसमें 4 और इसमें भी 4 शेल्स हैं, तो ये फोर्थ पीरियड से बिलोंग करते हैं. तो इनमें से बेरिलियम और फ्लोरीन ये सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, और कौन सा पीरियड है, सेकेंड पीरियड. और पोटेशियम और कैल्शियम भी सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, और इनका पीरियड है, देखिए 4 शेल है ना, KLMN, दे बिलोंग टू फोर्थ पीरियड. ठीक है, अब हमें ये भी बताना है कि इनमें से बड़ा कौन है साइज में. अब आपको पता है जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं टूवर्ड्स राइट, वैसे साइज छोटा होता है. तो बेरिलियम के बाद फ्लोरीन आ रहा है, तो इसमें से फ्लोरीन वुड बी स्मॉलर एंड बेरिलियम वुड बी बिगर ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज ऑफ फ्लोरीन. ये छोटा है, इट इज स्मॉल, और बेरिलियम क्या है, बिग.
अब सिमिलरली पोटेशियम और कैल्शियम में भी अगर हम देखें तो पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है और कैल्शियम सेकेंड ग्रुप में आ रहा है, लेकिन सेम पीरियड है, तो पोटेशियम बड़ा होगा कैल्शियम में से, क्योंकि कैल्शियम के अंदर न्यूक्लियर चार्ज कंपैरेटिवली कम है और पोटेशियम बिगर होगा क्योंकि उसमें न्यूक्लियर चार्ज कंपैरेटिवली ज़्यादा है। सॉरी, न्यूक्लियर चार्ज कम है पोटेशियम में और कैल्शियम में ज़्यादा है। गॉट इट? तो इन क्वेश्चंस को आप इस तरीके से करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एलिमेंट एक्स जिसका एटॉमिक नंबर है 17, वो रिएक्ट करता है एक एलिमेंट वाई से जिसका एटॉमिक नंबर है 20, और वो मिलके क्या बनाते हैं? दे फॉर्म अ कंपाउंड। हमें उसका फॉर्मूला लिखना है। तो कंपाउंड बनाने के लिए हमें वैलेंसीज चाहिए होंगी। तो बेसिकली यहाँ आपके पास 287 और यहाँ क्या है 2882। इसका वैलेंसी कितना है? -1 और इसका वैलेंसी है +2। तो मतलब x -1 और y +2 क्रिस क्रॉस करोगे, है ना? तो आपके पास क्या आएगा? आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है जो पॉजिटिव वैलेंसी वाला है वो हम पहले लेते हैं, ठीक है? इसको उल्टा मत बना देना। तो इट वुड बी XY2। क्या फॉर्मूला होगा? XY2। और एटॉमिक नंबर 17 आपको पता है किसका होता है? एटॉमिक नंबर 17 होता है क्लोरीन का, और एटॉमिक नंबर 20 किसका होता है? कैल्शियम का। तो इसलिए जो कंपाउंड बना वो क्या है? CaCl2। CaCl2। Next question is, the sex of a newborn child is a matter of chance and none of the parents may be considered responsible for it. Justify this statement with the help of flow chart showing the determination of sex. तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है। तो बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ प्रोसेस by which sex of a child can be known। हम जो होने वाले बच्चे का सेक्स पता लगा सकते हैं। तो हमें पता है कि जो मेल और फीमेल होते हैं उनके अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल में XY और फीमेल में XX। तो जब ये फ्यूज करते हैं तो आपको पता है बेसिकली हमारे पास पेरेंट्स होंगे। तो ऑब्वियसली एक आपके पास मदर होगी और एक क्या होगी? फादर। मदर वुड बी XX, सेक्स क्रोमोसोम XX हो गए, और फादर में XY होंगे। अब जब ये गेमीट्स बनाएंगे तो क्या बनेंगे? गेमीट X और X, और फादर हेट्रोगेमेटिक है, दो अलग गेमीट्स बनाएगा। तो F1 जनरेशन जो बनेगी, आपको पता है पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं यहाँ पे। तो आपके पास हो सकता है ये X और इस X के साथ रिएक्ट करे और XX आ जाए, ये X और ये Y के साथ रिएक्ट करके XY आ जाए, ये X और इस X के साथ रिएक्ट करके XX आ जाए, या यहाँ पे ये XY आ जाए। तो बेसिकली XX आपके पास 2 बार अपीयर हुआ और XY भी 2 बार अपीयर हुआ, तो दैट मीन्स दोनों का इक्वल चांस है, 50-50% चांस है। क्योंकि अगर XX होता है तो इसका मतलब होने वाला बच्चा गर्ल होगा, और XY होता है तो होने वाला बच्चा बॉय होगा। और सेक्स ऑफ अ चाइल्ड किस पे डिपेंड करेगा? फादर पे, क्योंकि फादर हेट्रोगेमेटिक है। फादर अलग तरह के गेमीट्स प्रोड्यूस कर रहा है, मदर तो दोनों ही बच्चों को X और X क्रोमोसोम अपना दे रही है। गॉट इट? तो ऐसा फ्लो चार्ट बनाकर आप इसको एक्सप्लेन करो। नेक्स्ट, tabulate two distinguished features between acquired traits and inherited traits with one example of each। तो हमारे पास acquired traits और inherited traits क्या होते हैं? Acquired traits, they are the characters or the traits which we acquire during our lifespan, due to our habits, basically आप कह सकते हो, and they are not transmitted to offspring। आगे जनरेशन में ये ट्रांसफर नहीं होगा। बट इनहेरिटेड ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं, और ये जो होते हैं दे आर पास टू जनरेशंस, मतलब ये आगे जनरेशन टू जनरेशन पास होते रहते हैं। गॉट इट? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल, अगर एक्वायर्ड ट्रेड्स का बात करें, सपोज हेयर कलरिंग आप कराते हो तो वो आगे बच्चे में थोड़ी ना जाता है। बट जो यहाँ पे आपका यहाँ ट्रेट होगा, अगर सपोज मैं आपसे कहूँ कि किसी बच्चे की ब्लू आईज है, राइट, तो वो तो ट्रेट आगे जा सकता है ना। So like this. Next, write two examples each of sexually transmitted disease caused by virus, bacteria, and explain how the transmission of such disease can be prevented. हमें बताना है
आपको पता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को हम एसटीडीज बेसिकली बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज एसटीडीज। तो एसटीडीज बहुत सारी हैं, जैसे वायरस से होने वाली एसटीडी कौन सी है, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एक हर्पीज वायरस से हर्पीज भी होता है विच इज कॉल्ड एज जेनिटल हर्पीज। एड्स के अंदर तो आपको पता है जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत वीक हो जाती है, और जेनिटल हर्पीस में क्या होता है, जेनिटल हर्पीस में बेसिकली सोर्स हो जाते हैं, जेनिटल ऑर्गन्स पे क्या हो जाते हैं, सोर्स। और बैक्टीरियल डिजीज की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया से कॉज होने वाली डिजीज हमारे पास जैसे है गोनोरिया, सिफाइलस, इस तरीके की। तो दे आर एसटीडीज बेसिकली। ऊपर वाली जो है वो वायरस से कॉज होने वाली एसटीडीज है, और गोनोरिया, सिफाइलस आपने एग्जाम्पल जो किए हैं ये बैक्टीरिया से कॉज होने वाली एसटीडीज है। अब कैसे ट्रांसमिशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, वी कैन प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। अब ये एसटीडी है तो ऑब्वियसली ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से पास होती है, तो it could be due to the wrong sexual contact, so that can be prevented, and we can make use of condoms and all, so that जो genital organs है वो direct contact के अंदर ना आए। You can stop sharing towels etc, and even if you are using condoms, don't let your skin touch with your partner. You can wash your this thing, the genital part after having an intercourse. तो ये चीजें कुछ आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो एसटीडीज को प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन इन प्लानेरिया, हाउ रीजनरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम रिप्रोडक्शन। अब जो प्लानेरिया है, प्लानेरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज ड्यू टू फ्रैगमेंटेशन, राइट, followed by regeneration, followed by regeneration। अब प्लानेरिया आपको पता है कि कुछ इस तरीके का होता है ना, कुछ इस तरीके का होता है प्लानेरिया। तो व्हाट हैपन, पहले वो इस तरीके से पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में कट हो जाता है, जैसे ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया, राइट। फिर उसके बाद दिस इज द फ्रैगमेंटेशन। इसका मतलब क्या है, फ्रैगमेंटेशन दैट इज द ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स। अब उसके बाद फ्रैगमेंटेशन के बाद क्या होता है, रीजनरेशन। जिसके पास जो पार्ट नहीं होता वो उसको रीजनरेट कर लेता है, वो उस पार्ट को क्या कर लेता है, रीजनरेट। और फिर आप देखो एक प्लानेरिया से 3 प्लानेरियाज बन गए हैं, दीज आर द डॉटर प्लानेरियाज, राइट। तो फ्रैगमेंटेशन बेसिकली मीन्स ऑर्गेनिज्म का स्प्लिट होना डिफरेंट सेगमेंट्स में, और फिर हर सेगमेंट की एबिलिटी है कि वो रीजनरेट कर सकता है अपना लॉस्ट पार्ट। अब रीजनरेशन रिप्रोडक्शन से कैसे डिसिमिलर है, देखिए जब फ्रैगमेंटेशन फॉलोड बाय रीजनरेशन हो रहा है तो इससे रिप्रोडक्शन हो रहा है, राइट। बट आपने देखा होगा जैसे कि स्टारफिश होती है, स्टारफिश की आर्म्स होती है, तो अगर एक आर्म उसकी लॉस हो जाती है, इट हैज द एबिलिटी टू रीजनरेट इट, बट उससे कोई नई स्टारफिश तो नहीं बन जाती है। इट ओनली रीजनरेट इट्स लॉस्ट पार्ट, इट ओनली रीजनरेट इट्स लॉस्ट पार्ट, तो दैट इज द रीजनरेशन। बट रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। सो रीजनरेशन कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल इन रिप्रोडक्शन, बट ओनली इट कैन बी अ सब पार्ट के पहले फ्रैगमेंटेशन हुआ और फिर रीजनरेशन हुआ है। बट अगर अकेला एक रीजनरेशन की बात करते हैं, जैसे लिजर्ड की अगर पूंछ कट जाती है तो वापस से वो बना लेती है अपनी पूंछ, तो दैट इज नॉट रिप्रोडक्शन, दैट इज जस्ट मेकिंग श्योर कि उसका लॉस्ट पार्ट दोबारा से अपीयर हो जाए। नेक्स्ट, an object of height 5 centimeter is placed perpendicular to the principal axis of concave lens of focal length 10 centimeter. Use lens formula to determine the position, size and nature of image if the distance of object from the lens is 20 centimeter. आपको दिया है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका हाइट कितना है, 5 सेंटीमीटर। इट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द कनकेव लेंस। हमारे पास कनकेव लेंस है यहाँ पे जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। हमें लेंस फॉर्मूला को यूज करके v फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है, राइट, नेचर फाइंड करना है, और हमें यहाँ पे दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 20 सेंटीमीटर। अब आपके पास यहाँ पे कनकेव लेंस है इस तरीके का, राइट। अब आपको पता है कि जो कनकेव लेंस होता है उसका फोकस क्या होता है, वर्चुअल फोकस होता है, तो यहाँ आप माइनस लगाओगे, डिस्टेंस हमेशा हम माइनस पे लेते हैं, और यहाँ पे और कुछ हमें नहीं गिवन है, हाइट
हमें सिर्फ 5 सेंटीमीटर गिवन थी। तो लेंस फॉर्मूला आपको पता है, हमारे पास होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमें फाइंड करना है यहाँ पे v, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू -1/u माइनस 1/f, है ना। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो दिस विल बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/20 माइनस, यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगेन इट वुड बी 10। तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 20, तो 1 + 2, तो v हमारे पास बेसिकली आ जाएगा यहाँ पे v वुड बी दिस वुड बी 3/20 और कैन बी 20/3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा v। तो इट वुड बी समथिंग आपको पता है 3 6 18 होता है 6.6 समथिंग 6.6। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है हाइट। तो हाइट से पहले हम नेचर निकाल लेते हैं। लेंस के लिए आपको पता है हमारे पास फॉर्मूला होता है v/u, तो m इज इक्वल टू v कितना दिया आपको, v है हमारा 6.6 और u कितना है हमारा, u इज -20, है ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 66/200, है ना। एक मिनट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आप भी करो क्या कैलकुलेशन इसका आता है। It would be 6.6 divided by 200. So it is something -0.3, -0.3, ठीक है। और अब यहाँ पे आपके पास जो हमें हाइट निकालनी है, तो हाइट आपके पास होगी हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज आपको दी हुई है, हमें सॉल्व करनी है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास है 5। तो हाइट ऑफ इमेज हमारे पास कितनी आ रही है, इट इज सॉरी दिस इज माइनस एंड दैट इज द रीजन दिस इज प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हाइट कितनी आ रही है, इट इज 0.3 इंटू 5, तो इसको आप सॉल्व करोगे इट वुड बी 1.5 सेंटीमीटर। इट इज गोइंग टू बी 1.5 सेंटीमीटर। गॉट इट। यहाँ पे ये जो माइनस का डिफरेंस आया, देयर इज सम स्लाइटली अ मिस्टेक ऑफ यूज ऑफ साइन, तो जस्ट चेक इट डाउन, दिस शुड बी 1.5, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इमेज बन रही है, आपको पता है कि जो कन्वेक्स लेंस है वो इमेज हमेशा कौन सी बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट। इट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट इमेज, ठीक है। तो हमारे पास जो एम है वो प्लस में ही आना चाहिए। गॉट इट। तो ये हमारा आंसर है। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे, बट साइन की गलती नहीं करोगे। जैसे यहाँ पे साइन में मुझसे मिस्टेक हो गया, आप साइन की मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे, इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप उसको करो। नेक्स्ट, mention the types of mirror used as rear view mirror and shaving mirror and list reasons to justify your answers. अब जो rear view mirror है वो कौन सा होता है, rear view mirror is the convex mirror, it is the convex mirror। और जो shaving mirror होता है वो कौन सा होता है, it is concave mirror। द रीजन बीइंग, अगर आप कनकेव मिरर में शेविंग करते हुए बहुत ध्यान से देखना पड़ता है स्किन को, है ना, शेव करते हुए, तो वी हैव टू कीप द फेस बिटवीन पोल एंड फोकस। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन पोल एंड फोकस इट फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज, जिसकी वजह से शेविंग ईजी हो जाती है। अब रियर व्यू मिरर मतलब आपको जो पीछे की चीज है वो सारी देखनी है। तो कन्वेक्स मिरर रियर व्यू मिरर इसलिए क्योंकि एक तो ये वाइड व्यू देता है, ये हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, ठीक है। तो इस वजह से इट इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर। नेक्स्ट, स्टेट द डिफरेंस इन कलर्स ऑफ द सन ऑब्जर्व ड्यूरिंग सनराइज, सनसेट एंड नून एंड गिव एक्सप्लेनेशन। अब देखिए, जब सनराइज होता है या सनसेट होता है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो इट इज जस्ट क्लोज टू द हॉरिजॉन, इट इज क्लोज टू दी हॉरिजॉन, ठीक है। अब जब ये हॉरिजॉन के क्लोज होता है तो इट हैज टू ट्रैवल अ लार्ज डिस्टेंस, इट हैज टू ट्रैवल अ लार्ज डिस्टेंस। तो क्या होता है कि इसकी ऑलमोस्ट सारी की सारी लाइट स्कैटर हो जाती है, इसकी सारी की सारी जो ब्लू लाइट है वो स्कैटर हो जाती है, और जो हमारे तक लाइट पहुंचती है उसको काफी डिस्टेंस ट्रैवल करके आना पड़ता है, दैट इज वाई इट अपीयर्स रेड।
बट अगर हम नून की टाइम बात करते हैं तो सन इज जस्ट एट ओवरहेड, हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर होता है सन। तो उस समय क्या होता है, सन हमें कैसा दिखता है, व्हाइट। द रीजन बीइंग, जो लाइट पास करती है, इस केस में तो जब लाइट पास करके आती है वो डेंसर मीडियम से पास करके आती है, लेकिन यहाँ पे लाइट जब पास करके आती है वो रेयरर मीडियम से पास होकर आती है, उसको शॉर्ट टाइम लगता है हमारे तक पहुंचने के लिए। और ऑलमोस्ट जितने भी लाइट विजिबल रीजन के कंपोनेंट्स हैं वो इक्वली स्कैटर होते हैं, दे आर इक्वली स्कैटर्ड। इसी वजह से जो हमें सन दिखता है वो कैसा दिखता है, व्हाइट। तो आप इसमें लिखोगे during sunset and sunrise it appears red because in both the case it is close to the horizon, so it has to travel a large distance, and while doing so its blue light gets almost scattered because the light travel from a denser medium and takes a lot of time to reach us. That is the reason it appears red. But when there is a noon, so sun is just at the overhead, right? So the light has to travel the rarer medium and it does in a short time, and all the components of visible light scattered get scattered equally. That is why it appears white, and this is quite important और ये question आपको आ सकता है. Next, what is an ecosystem? Lists its two main components. Next, we do not clean ponds or lakes, but an aquarium needs to be cleaned regularly. Explain. अब बेसिकली इकोसिस्टम क्या होता है, पहले हम इसको जान लेते हैं. इकोसिस्टम सब कुछ होता है, मतलब आप लगा लो कि एक ऐसी जगह जिसके अंदर एक ज्योग्राफिकल एरिया, लिख लेते हैं हम इसको. इट इज बेसिकली अ ज्योग्राफिकल एरिया जिसमें प्लांट्स होते हैं, इसमें एनिमल्स होते हैं, इसमें ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसमें आप कह दो लैंडस्केप्स वगैरह होते हैं, इसमें टोपोग्राफिक फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल क्लाइमेटिक फैक्टर्स, सब कुछ इंक्लूड होता है. और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक लाइफ. क्या क्या आप कहते हो कोऑर्डिनेशन इनका क्या पॉसिबल करता है, लाइफ. तो बेसिकली दो कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम के, एक एबायोटिक और एक बायोटिक. बायोटिक मतलब जो कि प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना है, और एबायोटिक जितने भी हमारे टोपोग्राफिक क्लाइमेटिक फीचर्स जो भी है, प्लेटूज, माउंटेन्स, वो सब क्या बनाते हैं, नॉन लिविंग फैक्टर्स एबायोटिक कंपोनेंट में. नेक्स्ट पार्ट में हमें बताना है व्हाई डू वी नीड टू क्लीन पॉन्ड्स और लेक्स बट एन एक्वेरियम नीड्स टू बी क्लीन रेगुलरली. हमें पॉन्ड्स और लेक को तो क्लीन नहीं करना पड़ता, बट एक्वेरियम को क्लीन करना पड़ता है. द रीजन बीइंग, पॉन्ड्स और लेक्स में डिकम्पोजर्स होते हैं जो कि क्लीन कर देते हैं, बट एक्वेरियम के अंदर डिकम्पोजर्स नहीं होते. तो जो भी वेस्ट रहता है उसको हमें आर्टिफिशियली उसको क्लीन करके रिमूव करना पड़ता है. तभी हम कहते हैं कि जो डिकम्पोजर्स हैं दे क्लीन द एनवायरमेंट, दे क्लीन द प्लेस, बिकॉज जो डेड एंड डिकेइंग चीजें होती है वो उन पे फीड करते हैं और उनको खत्म कर देते हैं वहां. बट एक्वेरियम में तो ऐसे कोई डिकम्पोजर्स होते ही नहीं है. दैट इज द रीजन इट हैज टू बी क्लीन्ड रेगुलरली. नेक्स्ट, write the function of placenta in females. Second, list 4 ways of preventing pregnancy. State 2 advantages of using such preventive measures. Right? तो आपको बताना है कि दो फंक्शन प्लेसेंटा का क्या होता है. तो बेसिकली प्लेसेंटा का फंक्शन होता है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ग्रोइंग एम्ब्रियो. इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ग्रोइंग एम्ब्रियो. ठीक है. और 4 वेज ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, और 2 एडवांटेजेस भी देने हैं. तो प्रेगनेंसी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, पहला बाय यूज ऑफ बैरियर मेथड. बाय यूज ऑफ बैरियर मेथड जिसमें आप कॉन्डम्स वगैरह का यूज करते हो, जो कि स्पर्म और एग को आपस में मीट ही नहीं करने देते. सेकेंड, वी हैव द केमिकल मेथड. केमिकल मेथड होता है जिसके अंदर हम पिल्स का यूज करते हैं. कैन बी वेजाइनल और कैन बी ओरल पिल्स. दे contain spermicides, so when consumed they kill the sperms. वो क्या करते हैं, स्पर्म्स को मार देती है. थर्ड, वी हैव द सर्जिकल मेथड. सर्जिकल मेथड क्या होता है, जिसमें मेल्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली वी सी अ वैसिकोटॉमी, जिसमें उनकी वास डिफरेंस को कट करके लाइगेट कर दिया जाता है. और फीमेल्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, ट्यूबिकोटॉमी, जिसमें उनका फेलोपियन ट्यूब कट करके लाइगेट कर दिया जाता है. तो दोनों ही केस में प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है. And lastly, we have IUCD. That is some devices which are inserted into the female by surgery, which is intrauterine contraceptive device like copper T. These devices prevent the implantation. These devices prevent the implantation. So by following these methods, we can just
कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑल्सो, एंड अगर कोई बाई चांस अगर कोई एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो गई है उसको भी अवॉइड किया जा सकता है. Next question is, identify A, B, C in the given diagram and write their functions. Next, mention the role of gamete and zygote in sexually reproducing organism. तो पहले क्वेश्चन में आपको ए बी सी बताना है कि क्या है और उनके फंक्शंस भी बताने हैं, और मेंशन द रोल ऑफ गेमीट एंड जाइगोट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. ए जो है हमारे पास, दिस इज स्टाइल, सॉरी दिस इज स्टिग्मा. ये क्या है? स्टिग्मा, जहां पे पोलन ग्रेन डेपोजिट होता है. बी इज द पोलन ट्यूब. बी क्या है हमारे पास? बी है पोलन ट्यूब, एक ऐसी ट्यूब जिससे जो पोलन ग्रेन के कंपोनेंट्स होते हैं, ट्यूब सेल और मेल गेमीट, एम्ब्रियो सैक तक पहुंच पाते हैं. एंड सी इज द एग सेल. सी इज द एग सेल which is going to fuse with the male gamete and will form zygote. Right? अब रोल ऑफ गेमीट्स, जो गेमीट्स होते हैं वही दे एक्चुअली पार्टिसिपेट इन फर्टिलाइजेशन. दे एक्चुअली पार्टिसिपेट इन फर्टिलाइजेशन. यही है जो आगे फ्यूज करते हैं और जाइगोट बनाते हैं. और जाइगोट क्या होता है? जाइगोट इज द फर्स्ट सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. मेल गेमीट और फीमेल गेमीट के न्यूक्लियस जो फ्यूज करके बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? जाइगोट. सो इट इज द फर्स्ट सेल फॉर्म्ड आफ्टर सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन. और इससे it will take nutrition and forms embryo, and then embryo is actually a developmental stage which finally form the developed offspring. Got it? Next question है हमारे पास, a person cannot read newspaper placing nearer than 50 centimeter from his eyes. Name the defect he is suffering from. Draw a ray diagram to illustrate this defect and list two possible causes, and draw a ray diagram to show this defect may be corrected by use of appropriate focal length. अब देखिए बोला गया है कि एक पर्सन है वो न्यूज़पेपर को बहुत पास रखे बिना नहीं पढ़ सकता है, मतलब उनको दूर की चीज नहीं दिखती है क्लियरली. So that means he is suffering from myopia. He is suffering from myopia, which is a disorder called short-sightedness, in which person can see nearby clearly. In which a person can see nearby clearly, but can't see far off clearly. लेकिन दूर की चीज क्लियरली नहीं देख सकते. So the reason can be a accommodation problem. Reason could be a accommodation problem. Accommodation problem क्या होती है? अब आपको पता है दूर की चीज देखने के लिए फोकल लेंथ इंक्रीज होनी जरूरी है. और फोकल लेंथ इंक्रीज कैसे होती है? जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स करती है और जो लेंस है वो थिन और इलोंगेटेड होता है. अब पर्सन दूर का नहीं देख पा रहा है तो इसका मतलब फोकल लेंथ प्रॉपरली इंक्रीज नहीं कर रही. और रीजन क्या हो सकता है कि सिलियरी मसल प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर रही है और लेंस प्रॉपरली थिन और इलोंगेट नहीं हो रहा है. यही कारण है कि उसको दूर का नहीं दिख रहा है. तो ऐसे केस में जो इमेज बनती है वो डिफेक्टिव इमेज बनती है. और कहाँ पे बनती है? इन फ्रंट ऑफ रेटिना. इन फ्रंट ऑफ रेटिना, क्योंकि इसके अंदर आई डिफेक्ट बेसिकली होता है कि जो लेंस है उसका कन्वर्जिंग पावर काफी ज्यादा हाई होता है. जो आई के अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर है जो कि कन्वेक्स लेंस को रिजेंबल करता है, उसका कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाता है? हाई. तो ऐसे केस में जब रे फॉल करती है लेंस पे तो वो रेटिना से पहले ही कन्वर्ज उसको करा देता है. तो इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना. तो अगर हम स्पेक्टिकल यूज करें जिसके अंदर जिसके अंदर कनकेव लेंस हो, जो कि डाइवर्जिंग लेंस है, वो पहले रेस को डाइवर्ज करा देगा, फिर हमारे आई का स्ट्रक्चर प्रॉपरली उनको कन्वर्ज कराएगा और रेटिना पे क्लियर इमेज बन सकती है. So we can make use of spectacles which contain the concave lens. Got it? तो इस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन करना है. पहले डेफिनेशन, फिर अकोमोडेशन प्रॉब्लम, फिर आई डिफेक्ट, और फिर डिफेक्टिव इमेज, और फिर करेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. कि आपको स्नेल्स लॉ क्या कहता है, and then write an expression to relate refractive index of medium with respect to light in vacuum. और फिर एक क्वेश्चन दिया है कि refractive index of medium A with respect to medium B is 2/3 and the refractive index of medium B with respect to C is 4/3. Find the refractive index of medium C with respect to medium A. अब इस क्वेश्चन के अंदर
अब इस क्वेश्चन के अंदर पहले तो हमें स्नेल्स लॉ को एक्सप्लेन करना है। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है? इट इज एक्चुअली द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is constant for a particular pair of media. For particular pair of media. यही होता है, दिस इज स्नेल्स लॉ, राइट। अब दूसरा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय एन, इट हैज नो यूनिट, और इसका मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब यहां आपको दिया है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास, आपको यहाँ दिया है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बी इज 2/3। तो हम इसको लिख लेते हैं, ऐसे ही लिखेंगे ना, ए बी, क्योंकि हमें दिया है मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बी, तो दिस इज गिवन एज 2/3, ठीक है। और आपको पता है इसको हम वैसे सॉल्व कैसे करते हैं? इट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन बी टू ए। अब ऐसे ही ये फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं। अब सेकेंड पार्ट आपको यहाँ दिया है बी से सी, तो आपके पास हो जाएगा बी से सी का वैल्यू, मतलब यहाँ पे आपके पास आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन सी टू स्पीड ऑफ लाइट इन बी, और इसका आपको वैल्यू दे रखा है 4/3, ठीक है। अब हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है दिस थिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये आपके पास क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन ए टू स्पीड ऑफ लाइट इन सी। अब इससे आप इसको लिख सकते हो, वी कैन राइट इट एज स्पीड ऑफ लाइट ए, है ना, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, राइट। तो यहां से आप इनकी वैल्यू पुट करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? इट वुड बी 3/2, क्योंकि a/b आपके पास इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा 3/4, राइट। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या आंसर आएगा? इट वुड बी 9/8। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए वुड बी 9/8. Next, define the term isomers. Draw 3 possible isomers of compound with molecular formula C5H12 and write their names. अब हमें बताना है आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड्स which have or which possess same molecular formula but they possess different structures. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है बट स्ट्रक्चर्स यहाँ पे डिफरेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमें कंपाउंड दिया है C5H12, इसके हमें क्या लिखते हैं? C5H12 के हमें यहाँ पे आइसोमर्स बनाने हैं। तो C5H12 आपके पास इसी तरीके से होता है, बेसिकली इट इज पेंटेन, ये क्या आपके पास N पेंटेन। तो आप इसको ब्रांच कर सकते हो, तो जब आप ब्रांच करोगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपको सिर्फ इसको कंपैक्ट करते जाना है, ठीक है। सो दिस वुड बी आइसोपेंटेन, कि हमने यहाँ पे एक कार्बन यहाँ डाल दिया। अब इसको और कंपैक्ट कर सकते हैं, अगर इसको यहाँ ले आओ तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरीके से। तो दिस इज कॉल्ड एज नियोपेंटेन। क्या है ये? नियोपेंटेन। तो इस तरीके से आप इसके आइसोमर्स बना सकते हो। तो अब तीनों स्ट्रक्चर्स में देखोगे आप, फॉर्मूला C5H12 है बट स्ट्रक्चर अलग है। Next question is, a student obtained a sharp image of burning candle placed at the farther end of lab table on screen using a concave mirror. For getting a better value of focal length of the mirror, what should the student do? He should move the mirror away from the screen. He should move the mirror slightly towards the screen. He should move the mirror as well as screen towards the newly selected object. D. He should move only the screen towards the newly selected object. अब आपको यह बोला गया है कि एक स्टूडेंट को शार्प इमेज चाहिए बर्निंग कैंडल की, राइट। तो उसको कनकेव मिरर के पास उसने स्क्रीन रखी हुई है, तो बेटर फोकल लेंथ के लिए उसको क्या करना चाहिए? सो आउट ऑफ 4 ऑब्वियसली ही शुड मूव द मिरर अवे फ्रॉम द स्क्रीन, उसको मिरर को थोड़ा सा स्क्रीन से दूर स्प्लिट कर देना चाहिए। तो
आई थिंक अभी हम इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं, बिकॉज टाइम इज ऑलमोस्ट गॉन। तो जो लेफ्ट ओवर क्वेश्चन है उनको मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगी, एंड आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा अच्छे से। So with this, we come to an end of this session. I hope you like the session. So if you like the session, hit the like button and share the video with your friends. And don't forget to hit the bell icon for the notification. So, and also if you haven't subscribed our channel, then subscribe it now. That let's crack CBSE 9th and 10th. So me, Divya Kashyap, signing off. We'll meet in the next session and we'll complete these pending questions. So till then, take care. Bye-bye.